तो नमस्ते अंजलि जी, गुड इवनिंग विजय जी। क्वेश्चंस नहीं है तो कोई बात नहीं है। और क्वेश्चंस या शेयरिंग से, हम जब शेयरिंग करते हैं, ये अंजलि और मैं टॉप टू वीडियोस में भी बोलते हैं कि जब हम शेयरिंग करते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर से बाहर आ जाती है। एंड इफ यू आर मेकिंग नोट्स, और जो डायरी बोली थी, वो उसका भी यही काम है कि जो हमारे अंदर है वो हमारे अंदर से बाहर आ जाए, यानी कि हमारे इनसाइड से वो बाहर आ जाए। तो ये एक खाली होने का प्रोसेस है। मेडिटेशन भी ये है कि जब हम कुछ कहीं पर कनेक्ट कर रहे हैं या कुछ चीजों को एफर्म कर रहे हैं या अपने घर, मतलब अपने जीवन में लाने के रियलिटी में, व्हेन वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट, first of all we have to empty ourselves, and all these notes or asking question or even sharing is important. And even just speaking one or two sentences, like whether I have done my homework or not, like Anjali shared, or I didn't get time, or I may be doing it in some time, or I have done it, I have spoken or heard some of the thing, that also helps. So welcome Annapurna ji and Jyoti. Thank you. Anything you like to share or say before I start on what is Karm Prakshalan Dhyan? Message reply. I have a small question, if I may. Yes, please. हाँ, यही तो time है. अच्छा, तो my question is that, what is the difference between intuition and that theta state and the dream state? Because a lot of times when you do get images, you do get certain messages. So I'm not able to identify whether this is a theta state or it is the other two, a dream, or is it in a meditative state I saw that image. I'm not able to distinguish. So what is the difference between these three? I mean, is there something which is more concrete than the other, or is it all very fluid and running into each other? Yeah, for the purpose of this workshop, this is how we are going to define it. So I'm not going to speak about theta because I have read the term, but I have forgotten what that theta state is. Okay, so I will only distinguish between the two words that I have used. I have used intuition and I have used a dream state, and one is waking state. So intuition means in with your awake eyes, like all your senses on the outer world, as we say, or in my waking state, where my brain is running. अगर हिंदी और संस्कृत में बोलेंगे, बुद्धि, मन, आंखें, सब कुछ खुली हुई है। और उस स्थिति में जब मुझे कोई चीज महसूस हो रही है, दिख रही है, या मेरी समझ आ रही है, if I am able to decipher, if I am able to take in certain inputs which are not evident, which are not very logical in this outer world, that is intuition, which I get it with my all sense perceptions on and in the waking state. That is the intuition. And in the dream state, when I am asleep, or when my mind is gone into a certain frequency, or in a sushupti state, when it's not active, and then my logical mind is also not active, and we are energized in certain bodies, on an astral body, or all the astral body where we connect with that universal wisdom. When that is activated, then we get some sense perception, some images or words or videos, like I say, videos, like we see a clip for a movie or a feeling. That is the message from a dream state. Then that dream state, so I distinguish between intuition and dream that way. That when I am in a state where my
logical mind is not working, I'm not attached, or I'm not focused on the outer, then that is a dream state. Thank you. Thank you. Thank you. Anything else? Annapurna ji, if you have not done homework, that's really fine. So just, affirmation. Yes, so Karma Prakshalan, as the word says, it is about karmas. It's about washing away the karmas. So all this intuition, how I'm linking both this Indian philosophy that I would say and this word intuition or intuition development is to get this intuition, to get these informations which are not very logical or very, like open book, is to empty ourselves, meaning whatever energy we are focused on, which is not required at the moment, whether we are in the past or we are in the future, whether we are in the past guilt or fear or regret, all these things, or whether we are focused on the mostly that dreaming about what we don't have or comparing. So when we uh, uh, break away, when we break away from these sources which are not required, the points which are not required, these bodies, these physical, astral, mental body all get freed up, खाली हो जाती हैं, हमारे पास ज्यादा एनर्जी होती है. जब ज्यादा एनर्जी होती है तब हम ये जो भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज बैंक है, जिसको चाहे आप बोलिए कि हम ड्रीम स्टेट में जाके एक्सेस कर सकते हैं, या बोलिए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये शब्दावली अलग होती है. पर जब हम खाली होते हैं और हमारी एनर्जी जो है वो हमारी फोकस होती है इस बात पर कि हमारा क्या गोल है, हम आगे कैसे बढ़े, उस पर ही फोकस होती है, तब हमें ये इंट्यूशन या जो ये नॉलेज बेस है उसकी एक्सेस मिलती है, वो जो की होती है या एक्सेस होती है. और हम दूसरी भाषा में कहें कि हमारे में वो ताकत आती है, हम में वो एनर्जी आती है, वो स्टेमिना बिल्ड करना पड़ता है. तो स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, वो नॉलेज बेस तक जाने के लिए, जैसे एक स्पोर्ट्समैन रोज 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 एक 100 मीटर की रेस दौड़ने के लिए रोज प्रैक्टिस करता है, उसी तरह ये जो ध्यान है आनापानसति ध्यान, ये हमारी मदद करती है. अब जब हम लोग आनापानसति ध्यान करते हैं तो तब जब हम अपनी मतलब जो एक्चुअली फोकस जो हम यहाँ पर नाक पे रखते हैं, एक किस्म से ना हम अपने आज्ञा चक्र पे रख रहे हैं, ना हम अपनी विशुद्धि पे रख रहे हैं, तो अपनी सांस पे रख रहे हैं, और सांस कहाँ कहाँ जा रही है उस पे रख रहे हैं. ठीक है, तो जब हम एक ही लॉजिक है इस मेडिटेशन का, सिर्फ एक साइंटिफिक लॉजिक है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करना, अगर आप सचमुच में सांस पे फोकस्ड हैं, बिल्कुल सांस पे फोकस्ड हैं, तो आप कुछ दूसरा सोच ही नहीं सकते. ना आप पीछे का सोच सकते हैं, ना आप आगे का सोच सकते हैं. दूसरा, आप अगर बिल्कुल नहीं करना पा रहे हैं, कभी ध्यान नहीं कर पा रहे हैं और आप बहुत थॉट्स चल रहे हैं, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि आप मुंह खुला रखिए. जब आप मुंह खुला रखेंगे और सांस इस तरह से लेंगे, आप हो ही नहीं सकता कि आपके मन में कोई थॉट्स आए. तो इसके लिए ना हमको मुंह खुला रखना है, सांस लेते रहना है, नॉर्मल सांस लेना है, ना अपने दिमाग को एनालिटिकल जप में कि मुझे वो 108 की माला करनी है, जप माला, ये कुछ भी नहीं. ये सारी चीजें जो हैं वो राजयोग के अंतर्गत आती हैं कि ना आपने रिचुअल करना है, ना आपने मंत्र पढ़ना है, ना अपने मंत्रों का पुनः पुनः उच्चारण करना है. सिर्फ आपके सांस पे आपने ध्यान देके आपने अपने नॉलेज बेस की तरफ या अपने इंटरनल विजडम, जौन सा भी शब्द आपको ठीक लगता है इस वक्त, यूनिवर्सल एनर्जी से मिलना, कॉस्मिक एनर्जी को गेन करके अपने बॉडीज में हम जब पूरे तरह एनरिच्ड या स्टेमिना हम में बिल्ड हो जाता है, हम पूरे तरह एनर्जाइज्ड हो जाते हैं. अगर शरीर एक बैटरी है तो उसकी किसी मिनिमम लेवल की एनर्जी पर ही हम ये नॉलेज बेस तक एक्सेस कर पाते हैं. जब डिप्लीटेड होते हैं तब नहीं कर पाते हैं. तो उसी लिए जब हम कभी कभी बोलते हैं कि हम
याद नहीं रख पा रहे हैं, अक्सर जिनको सपने याद भी रहते हैं वो अक्सर या तो थक जाते हैं या तो गॉसिप में होते हैं दिन भर में, या कुछ इस तरह की चिंताओं में होते हैं, उस दिन भी सपने नहीं आते हैं क्योंकि बॉडी को उतनी एनर्जी चाहिए होती है वहां तक पहुंचने की। तो इंट्यूशन इज वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट इज अबाउट कि मतलब जब हम सो जाते हैं तब उसको करना। अब मैं आती हूँ कर्म प्रक्षालन। तो कर्म प्रक्षालन, अब वैसे तो 4th सेशन में मैंने बता रखा है कि कर्म का क्या होता है, लेकिन जब हम कर्म क्या होता है, हम पीछे के थॉट्स में क्यों रहेंगे, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम किया होगा कि वो इस जीवन में वो एक्टिवेट हो रखा है और हमारा ध्यान हर समय ही उन चिंताओं में या उन उस कर्मा में हर टाइम चला जाता है, क्वेश्चंस में चला जाता है, थॉट्स में चला जाता है, जो कि हमें अभी अभी इस वक्त माइंडफुल या इस वक्त जो काम हो रहा है उसमें से हटा देता है, हमारा ध्यान हटा देता है। तो इसको ही कर्मा कहते हैं कि जो चीज मैं करना चाहती हूँ उस चीज में नहीं बल्कि मैं कहीं पर और हूँ। अब इस कर्म को प्रक्षालन यानी इस कर्म को धोना या उस कॉर्ड को कट करना या उन कॉर्ड को सोर्स से ही कट करने के लिए कर्म प्रक्षालन ध्यान होता है। कर्म प्रक्षालन का ध्यान में हम क्योंकि अब हम भारत में सारे लोग जन्मे हैं, तो उसके जो गुरु होते हैं या जो उसके क्या बोलेंगे जो उसको मैनेज करते हैं वो है लॉर्ड शिवा। तो ये जो प्रार्थना होती है हम लॉर्ड शिवा और उनके सारे टीम मेंबर से कर रहे होते हैं। तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन के लिए हम उनको इन्वोक करते हैं यानी कि उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरा इस जन्म में गत जन्म मतलब पिछले जन्मों में जो मैंने दुष्कर्म किए हैं उन उन और जिनके प्रति किए हैं उन आत्माओं से मैं माफी मांगती हूँ। तो ये माफी मांगना जो होता है ये ऐसा नहीं होता है कि मैंने लाइक आपको इन सभी पता होगा, मैं जस्ट बता रही हूँ कि माफी मांगना ये सिर्फ शब्द की नहीं होता है, यहाँ पर कर्म प्रक्षालन में हम उसको महसूस करते हैं। तो इस वाला ये जो कर्म प्रक्षालन ध्यान है वो ये तो फॉर्मेट की तरह मैं बता रही हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं, बट अगर आपके हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या आई है, जैसे कि इस वक्त मेरे पास फुल टाइम नौकरी नहीं है, मेरे पास घर है, मेरा सब कुछ चल रहा है, पर ये मेरी समस्या है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी फुल टाइम नौकरी लगे। तो मैं ये कहूंगी कि फुल टाइम नौकरी की जो ये समस्या है, जो इश्यू है, इसके इससे रिलेटेड जो भी आत्माओं को के प्रति मैंने कोई दुष्कर्म किया है, मैंने उनको दुख पहुंचाया है, उन आत्माओं को मैं इस ध्यान में आपके मतलब हमारे जो लॉर्ड शिवा हैं और जो हमारे आदरणीय गुरु हैं उनके अनुमति से मैं उनको बुलाकर एक सोल टॉक कर रही हूँ कि उस वक्त जो भी मैंने किया उस वक्त मैं अज्ञानी थी और मेरे अज्ञान की वजह से या सही सही मार्गदर्शन न होते हुए मैंने वो कृत्य किया, काम किया, आपको चाहे शारीरिक चाहे मानसिक या किसी भी रूप से मैंने आपको दुख दिया है, आप मुझे कृपया माफ करें। फिर आप उसी तरह से उन्हीं शब्दों में लॉर्ड शिवा से भी आप मतलब कि हम डिवाइन मास्टर से भी बोलते हैं कि मैं अब ध्यान के जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, आप मुझे वो करें, आप मुझे माफ करें। इस तरह हम इसको अंग्रेजी में सोल टॉक भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि मैं उनसे माफी मांग रही हूँ, या कुल मिलाकर ये कहेंगे कि मैं कर्म प्रक्षालन ध्यान कर रही हूँ। तो आगे जब मैं ड्रीम सेशंस लूंगी तो उस ड्रीम सेशंस में भी जब इस तरह कर्मा और ड्रीम्स को जोड़ूंगी तब भी मैं इस कर्म प्रक्षालन के को रेफरेंस करूंगी। आप इस वक्त अपना कोई एक समस्या जिससे आप जूझ रहे हैं उसको मन में रखकर अब हम ये ध्यान शुरू करेंगे। तो ध्यान गाइडेड ध्यान होगा और ध्यान गाइडेड ध्यान को करने के लिए हम ये कहते हैं शुरुआत में ही कि अगर मैं मन में वो ना इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाई तो जो फॉलो हो रहा है, जो कहा जा रहा है, मैं वही कह रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं जो इंस्ट्रक्शन है बहुत धीरे दूंगी, पर इससे पहले कोई आपकी बात समझ ना आई हो, मैंने तेजी में कहा हो, तो प्लीज।
हाँ, तो सॉरी अगेन मी, ये आपने जो माफी मांगनी है, ये माफी, आई मीन आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस। आई डेंट अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, तो हाँ, जैसे यू आर मैंने सीकिंग एग्जाम, फॉरगिवनेस फॉर व्हाट? You are asking them to support us, but you are asking for forgiveness for what? तो ये फिर से एग्जांपल मैं बताती हूँ। तो ये एग्जांपल मेरा अपना है कि मैं अभी इस वक्त ये इश्यू है कि फुल टाइम जॉब नहीं है, ठीक है। तो फुल टाइम जॉब नहीं है, इसको मैं अपना क्या मान रही हूँ कि मैंने किसी के प्रति कोई बैड कुछ काम किया है, किसी को उसकी आमदनी से रोका है, किसी को उसके अबंडेंस से रोका है, पिछले जन्म में या इस जन्म में। तो मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना। जो मेरे पास इस वक्त, तो इसका अगर और धीरे उसको करें, तो जो मेरे पास नहीं है वो मैंने किसी से या तो ले लिया था या किसी को दिया नहीं था। तो उस रिलेटेड, उस जो जिसके साथ मैंने ऐसे काम किए, उन आत्माओं को बुला के मैं उनसे माफी मांग रही हूँ। Okay, okay, okay. ध्यान में। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, यस मैम। हम कोई भी वो रख सकते हैं क्या? कोई हाँ भी हाँ, रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी, का कोई अपना भी, मन में रख? हाँ कोई भी जो आपकी समस्या हो, उस हेल्थ के रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, मेरे बच्चे से रिलेटेड, मेरे पति से रिलेटेड, जो जौन सी भी समस्या हो। तो ये एग्जाम्पल के रूप में, क्योंकि ये फॉर्मेट बता रही हूँ ना मैं, इस वाले सेशन में मैं फॉर्मेट बता रही हूँ। आगे मैं मैम मैं इसका एक रेफरेंस करूंगी, पर ये आज मैं फॉर्मेट बता रही हूँ। बताइए मैं फिर। एक सेंटेंस बोलूं? वो विजया मैडम ने क्वेश्चन की थी, हाँ हाँ उसके लिए एक सेंटेंस में मैं बताना चाहूंगी। हाँ हाँ, मतलब सॉरी फॉर व्हाट, फॉरगिवनेस फॉर व्हाट उन्होंने पूछा ना। हमने जाने अनजाने, है ना, हमारे अंदर बहुत थॉट्स चलती है दिन भर में। हमें पता भी नहीं चलता कितने, तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि 55,000 थॉट्स में हम रिकॉग्नाइज कितना करते। जाने अनजाने हमारे भाव से, विचार से, वाणी से और क्रिया से, जानबूझ के भले नहीं किया हो, लेकिन किसी को उनके बाधा बने हैं, किसी के सुख में, किसी के फाइनेंशियल उसमें, किसी के हेल्थ के उसमें, कोई भी उसमें हम बाधा बने हैं। दुख दिया है, दर्द दिया है, भले जानबूझ के नहीं किया। कभी कभी होता है ना, हम किसी को जाके थप्पड़ नहीं मारते, रास्ते में मान लीजिए हमारे गाड़ी के बीच में कोई गाड़ी लाके रखा, मन में क्या बोलते, ऐसा लगता है कि खींच के मारू। वो हम, उसका रिलेशन नहीं है हमारा, हम जानते भी नहीं है, लेकिन इस चीज से हम कर्म में बंधन बांधते हैं, बंध जाता है, रिलेशन कर लेते हैं हम, एक बंधन बंध गया। तो उससे बाहर आने के लिए शायद आप ये ध्यान करवा रहे हैं, शायद ऐसा नहीं, मैं मेरे। ऐसा ही ध्यान करवा रही हूँ। तो हाँ ठीक है, मन, फिर ठीक। कर्म, हाँ वचन से मैंने जाने या अनजाने, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो ठीक भी है मैम। काम किया, उसके लिए हाँ उन आत्माओं से मैं माफी मांग रही हूँ। जी और मैम, बस हाँ, वही कहना है। और मैं हाँ, सिर्फ मन में ही माफी मांग रही हूँ। मैंने जाके, अगर मेरे मन में सचमुच में कोई पर्सन है, तो उससे मैंने माफी नहीं मांगनी है। ये एनर्जेटिक माफी मांग रहे हैं हम। और कभी हमें, ज्यादातर हमें पता भी नहीं होता कि किससे माफी मांगनी है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब ज्यादा इसका एनालिसिस ना करते हुए, या जितना हो गया उतना एनालिसिस करके, अब हम धीरे धीरे अपना चश्मा उतारेंगे और आंखें बंद करेंगे। करीब 20 मिनट का ये सेशन होगा, ध्यान होगा। तो प्लीज बी पेशेंट, एंड दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड। तो प्लीज बी पेशेंट, आंखें बंद करें, फिर सुखासन में बैठें। उंगलियों को ऐसे क्रॉस करके गोद में रखें।
आलती पालती करके बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुर्सी किया में बैठे हैं तो पैरों को भी क्रॉस कर लें, पैरों को भी ऐसे क्रॉस कर लें, और आंखें बड़ी आहिस्ता से बंद रखनी है। शुरुआत में पीठ जो है सीधी रखनी है, जितना आप सीधी कर सकें पीठ सीधी रखनी है। सांस पे ध्यान रखना है, सांस पे ध्यान रखेंगे। रिलैक्स करेंगे फ्रेंड्स। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आपको रिलैक्स करती है। नॉर्मल नॉर्मल ब्रीदिंग। सहज स्वाभाविक सांस पर ध्यान। द मास्टर्स, हम इमेजिन करेंगे कि एक बहुत विशाल पिरामिड के नीचे हम ध्यान कर रहे हैं। पिरामिड की ऊर्जा तिगुनी कॉस्मिक ऊर्जा हमें देती है। We are invoking the pyramid energy here. Next, we invite our overself, पूर्ण आत्मा को महादेव, पार्वती, गणेश जी और इन सभी के सहायक को हम विनम्रता से आमंत्रित करेंगे। मास्टर्स एंड फ्रेंड्स, आपको ये सब मन ही मन बोलना है। सांस पे ध्यान,
सरल स्वाभाविक सांस सांस पे ध्यान। हे महादेव, हे प्रभु, आप की अनुमति से उन आत्माओं को आमंत्रित कर रही हूँ जिनके प्रति मैंने जाने अनजाने में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इस जन्म में या गत जन्मों में कोई दुष्कर्म किया। हे प्रभु, मैं उन आत्माओं को भी आमंत्रित कर रही हूँ जिन्होंने मेरे प्रति जाने अनजाने में दुष्कर्म किए। अब हम 7 बार ओम नमः शिवाय मन ही मन बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अब हम डिवाइन मास्टर्स महादेव से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मैंने इस जन्म में या गत जन्मों में जो भी दुष्कर्म किए, मैं उसका उत्तरदायित्व लेता हूँ और मैं प्रायश्चित कर रही हूँ, प्रायश्चित कर रही हूँ। प्रायश्चित कर रही हूँ।
हे प्रभु, अब मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ। आई एम चेंजिंग। मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मेरे द्वारा जाने या अनजाने में जो दुष्कर्म हुए वह मेरी अज्ञानता के कारण हुए। सही गलत का ज्ञान नहीं था। अब मैं परिवर्तनशील आत्मा हूँ। जिन आत्माओं को मैंने गत जन्मों में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कष्ट पहुंचाए, उनको मैं पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ। मैं उन सभी आत्माओं से क्षमा मांग रही हूँ। क्षमा मांग रही हूँ। Focus on the breath. सहज, सरल सांस, सांस पर ध्यान। हे महादेव, इन दुष्कर्मों के लिए जो मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में किए, उसके लिए मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें। हमने इन आत्माओं को अपने साथ ध्यान करने के लिए भी बुलाया है। उनसे हम ध्यान में क्षमा मांग रहे हैं। फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, मैं क्षमा, हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही हूँ। मास्टर्स, मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और अब ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मैं हर दिन एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूँ।
मैं अन्य प्राणियों की, पशुओं की, धरती माँ की और प्रकृति माँ की सहायता करूंगी। मन, वचन और कर्म से मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगी। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्रेम दूंगी और सबके साथ समभाव रखूंगी। हे प्रभु, मैं मन, वचन, कर्म से अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन कर रहा हूँ। अब हम डिवाइन मास्टर्स को साक्षी रखकर, महादेव को और उनकी टीम को साक्षी रखकर उन आत्माओं को भी क्षमा करेंगे जिन्होंने हमें कष्ट दिया। उन्होंने भी ये काम अज्ञानता के कारण किया। उन्हें क्षमा करके हम कार्मिक बंधनों से मुक्त करते हैं, उन्हें भी और स्वयं को भी मुक्त कर रहे हैं। वे सभी आत्माएं अपने आगे की यात्रा पर बढ़ सके और मैं भी अपनी आत्मा की यात्रा पर आगे बढ़ूं। सरल स्वाभाविक सांस। हे प्रभु, मैंने जाने या अनजाने में, हे महादेव, मैंने जाने या अनजाने में जो दुष्कर्म किए, इस जन्म में या गत जन्मों में, उसके लिए मैं स्वयं को भी आपको साक्षी रखकर पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ। क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ। मैं ये स्वयं से प्रण करती हूँ कि भविष्य में मैं हर कर्म के प्रति सजग रहूंगी। माइंडफुल रहूंगी। अब हम 7 बार मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे मन ही मन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं इस ध्यान को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। I accept this process. मैं ये ध्यान औरों को सिखाऊंगी और सभी को शाकाहार का मतलब बताऊंगी। हम एक बार फिर महादेव अपनी पूर्ण आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। जिनको हमने दुख दिया, उनके दुख को एक बार फिर महसूस करके क्षमा मांगेंगे। अब हम उन मास्टर्स का आशीर्वाद महसूस करेंगे, क्षमा महसूस करेंगे, जिनके प्रति हमने दुष्कर्म किए थे और उनको ध्यान में आमंत्रित किया था। ये कल्पना करेंगे कि उन्होंने हमें क्षमा किया। महादेव, डिवाइन मास्टर्स भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और इन आत्माओं को भी आशीर्वाद दे रहे हैं जिन्होंने हमारे क्षमा स्वीकार की। इस आशीर्वाद से जो दुख थे वे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। अब हम इन आत्माओं को धन्यवाद देते हुए कल्पना करेंगे कि वे अपने अपने तल पर जा रहे हैं और धन्यवाद उन परिस्थितियों का भी
जिनकी वजह से हमारी आध्यात्मिक यात्रा, हमारी यात्रा में उन्नति हुई। Thank you for the experiences. धन्यवाद माता पिता का, गुरुजनों का, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, जिन्होंने हमारी सहायता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। डिवाइन मास्टर्स का भी धन्यवाद। उन्होंने हमारा इस ध्यान में मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब धीरे धीरे हम, जो लोग सोना चाहते हैं वह तो सीधे सो जाएं। जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, हाथ पे हथेलियों को चेहरे पे रखें और धीरे धीरे आंखें खोलें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मास्टर्स, इसके बाद फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, इसके बाद आपको कोई सपने आने आ सकते हैं। उन सपनों को आप जरूर शेयर करें। लिखें, पहले तो याद रखें, लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।